नए साल के आगमन के बाद स्कूलों में भी नए सत्र की शुरुआत होती है और ऐसे में पेरेंट्स की ये खोज होती है कि वो बेहतर सुविधाएं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और हर तरह की सुविधाएं वाले स्कूल की वो तलाश में रहते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जीसस मैरी कॉन्वेंट स्कूल में और आपको बता दें कि इस स्कूल में हर तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, चाहे वो लैब की बात करें, कंप्यूटर लैब की बात करें, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग लैबों की बात करें, स्मार्ट क्लासेस की बात करें और यहाँ पर अलग अलग जगहों से टीचर आकर स्कूल में बेहतर सुविधा और बच्चों को एक अच्छे इन्वायरमेंट में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ स्कूल की शिक्षिका मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस स्कूल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो स्कूल के बारे में आप बता दीजिए थोड़ा सा, क्या क्या स्कूल में अवेलेबल है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चों का असेसमेंट किया जाता है, वो हर कुछ आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। Our school not only provides education, it also helps in developing their personality. Plus, our school have digital learning where we can study through audio as well as video. We have digital learning in every classes. Plus, we develop their self personality, their development, whether it is physically, emotionally, and there are many ample scope in the school where they can participate in each and every scope, and they can even participate in debate competition. Different competition are held in this school where they can show their talents. Plus, our school provides computer lab for students, library. Plus, we have many science equipments where they can do their lab processes and all. Why about children that so that they learn in audio and video? Why it is important? Basically, why students need to learn in both audio and video is through visualization they can visualize each and everything. Whatever they are studying, if they are able to see it in the screen, it will be very easy for them to visualize. So whatever they are studying, जो ये पढ़ रहे हैं वो they can imagine it and they can read it. Also brief about the infrastructure and the environment of the school. Like our school provides all the facilities whatever is required for a student, whether it is physical, whether it's emotional, any type of whether it's not only about students. Over here teachers are also given the facilities, like they are given the training. Every month they are given a particular training, plus they are given techniques, trainings to how to treat the children or how to teach them in a class, like cold calling. There are different processes through which we interact with the children. How you assess the children and how you get to know that this children is, means we can say that this children is good talented and this children is weak? How you can assess that? Like for teachers also it's very sometimes it's difficult, but here we are provided with a training. For teachers also there's a training, like every month from the outer section there comes one tutor who tells the teachers how to cooperate with the students, how to interact, like if they are understanding or not, how to cope with the weak students, how to cope with the other students. That's how we deal with the students. What's your good name, ma'am? My name is Ushma Gulitamang. I'm really sorry. What do you teach? I teach ELGA from class 6 to class 8. That's ELGA in lead. And 9, 10, I go with English. इस स्कूल में ये शिक्षिका है, ये टीचर है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इंग्लिश में बताया, तो वो चीज़ें आप समझ पाएंगे। हम आपको बता दें कि स्कूल में बेहतर सुविधाएं यानी कि हर तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, यहाँ के हेल्दी इन्वायरमेंट स्कूल में अवेलेबल है। साथ साथ आपको प्रैक्टिकल की बात कर रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री लैब के प्रैक्टिकल अवेलेबल है, कंप्यूटर लैब अवेलेबल है और यहाँ पर बच्चों को अच्छी तरीके से असेस किया जाता है, उसके रेगुलर बेसिस पर असेसमेंट किए जाते हैं। चाहे वो एलकेजी की बात करें या क्लास 10 तक की बात करें, हर बच्चों को यहाँ पर असेसमेंट किया जाता है और ऑडियो और वीडियो हर तरह के माध्यम से स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो हमारे साथ स्कूल के एक और टीचर यहाँ पर मौजूद हैं, इनका नाम है मीना राय। तो इनसे हम जानते हैं कि बच्चों को किस तरह से स्कूलों में पढ़ाया जाता है। मैम बहुत बहुत पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। क्या चीज़ पढ़ाती हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? आई टीच एसएसटी। एसएसटी, तो कैसे क्या क्या पढ़ा रही है आप एसएसटी में? एसएसटी में लाइक ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पोल साइंस, civics. And from here in geography about the like Indian geography and also like world geography also, and Indian history, world history, like it goes respectively. अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं आपको, आप टीचर हैं स्कूल के, तो पेरेंट्स को क्या बताइएगा कि वो कन्विंस हो जाए कि हाँ वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें?
I would like to say ki like we here in this Jesus and Mary Convent School, we provide education quality, and I make sure that we all the teachers give 100%, and we like here, especially we do the student-centered learning. We especially see the students, and accordingly what is their need and what are their necessities. Accordingly, we try to give our best and our 100%, and I can like ensure that like they can get like best quality education in this school. हम स्कूल के कंप्यूटर लैब में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए कि बच्चे यहाँ पर अलग अलग चीज़ों का प्रैक्टिकल कर रहे हैं और हमारे साथ कंप्यूटर के टीचर यहाँ पर अवेलेबल हैं। सर क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अभिषेक है। बच्चों को कंप्यूटर में क्या कुछ पढ़ाते हैं? हमारे स्कूल में कंप्यूटर के लिए लाइक अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ पढ़ाया जा रहा है। हमारे स्कूल में क्लास 1 से ही कंप्यूटर चालू है। क्लास 1 में सिखाते हैं हम बच्चों को, सिर्फ वर्बली नहीं सिखाते हैं, प्रैक्टिकली माउस चलाना, कीबोर्ड चलाना क्लास 1 में सिखाते हैं। और जैसे जैसे लेवल अप होता है क्लास 4 से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि क्लास 1-2 में भी क्लास 2 में भी प्रोग्रामिंग है, लेकिन वो बच्चों को स्टोरीज बनाना है तो वो कोड करके वो स्टोरीज बनाते हैं। और क्लास 4 में हायर लेवल का कोडिंग करने लगते हैं, HTML प्रोग्रामिंग ये सब हो गया। और क्लास 5-6 जाते जाते तक में वो लोग पाइथन ये सब पढ़ने लगते हैं, जो कि अभी तक यहाँ पे गोड्डा में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। बट हम उसको यहाँ पे स्कूल में क्लास 5 से ही पढ़ा रहे हैं, क्लास 6 से पाइथन कोडिंग पढ़ा रहे हैं। और क्लास 8 जाते तक में SQL पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे SQL होता क्या है, ये डाटाबेस ये सब का चीज़ होता है, बट बहुत लोग जानते नहीं है। और हम अभी से वो नॉलेज क्लास 8 में डाल रहे हैं, ताकि जब वो फ्यूचर में कॉलेज में जाएंगे तो उनको बहुत ईजी लगेगा ये सब चीज़। कंप्यूटर मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के डेट में, जब बच्चे प्रैक्टिकल की ओर जाते हैं तो कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। तो कैसा लगता है बच्चों को, मतलब बच्चे यहाँ पे क्या लगता है सीख पाते हैं? बच्चों में ये सबसे अच्छी बात है कि वो उनका दिमाग अभी बहुत खाली है और वो हर चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब कर रहे हैं। और सबसे मेन है कि आपको पढ़ाने का तरीका कैसा है। आप अगर उसको जितना आसान तरीके से पढ़ाएंगे बच्चे उतना जल्दी ग्रैब कर पाते हैं। जैसे कि हम उसको अगर शुरू से ही फीड करते जाएँ थोड़ा चीज़, जैसे हम क्लास 4 से HTML चालू कर देते हैं, तब उसको ना क्लास 5-6 जाते तक में वो HTML पूरा एक वेबसाइट, HTML से वेबसाइट बनता है और वो पूरा एक वेबसाइट बनाना सीखने लगते हैं पूरा लगभग। तो अब जब हम क्लास 4 से थोड़ा करके डाल रहे हैं तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है चीज़ को सीखना। तो यहाँ के बच्चे में वो चीज़ देखने को मिल रहा है कि बहुत ईजिली सीख पा रहे हैं चीज़ों को। बहुत बहुत थैंक यू सर। तो बच्चे आप देखिए यहाँ कैमरा में दिखाइए कि बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्या नाम है, इधर थोड़ा देखिए, क्या नाम है मेरा आपका? नाम युवराज कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? आई स्टडी इन क्लास 5। क्लास 5 में क्या बना रहे हैं अभी, थोड़ा बताइए हम लोग को भी। HTML। HTML कौन सा प्रोग्राम है, क्या बनेगा ये पूरा करने के बाद? ये पूरा करने के बाद हम लोग न्यू 7 वंडर्स का मतलब एक टेबल बना रहे हैं। डिज़ाइन बनाएंगे, ये पूरा कोड डाल रहे हैं आप? Yes। स्क्रीन पर दिखाइए कि बच्चे यहाँ पर कोड डालते हुए बना रहे हैं, थोड़ा सा बताइए, करके दिखाइए। जैसे कि हम लोगों ने TD अभी स्टार्ट किया, मतलब TD का फुल फॉर्म होता है टेबल डाटा। अच्छा। और अभी हम लोग 3 नंबर में, तो हम लोग 4 को क्लिक करके टेबल डाटा को क्लोज करना होता है। तो ये पूरा कोड आपको याद है? यस सर। ये सर ने बताया है। अच्छा लगता है कंप्यूटर करना? यस सर। प्रैक्टिकल, ठीक है, थैंक यू। तो आप देखिए यहाँ पर बच्चे, ये कंप्यूटर लैब था और बच्चे अलग अलग जो उनको टीचर द्वारा सिखाया जाता है वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। फिलहाल वो HTML का प्रोग्राम बना रहे हैं और फिर वो उसके बाद वो डिज़ाइन बनाएंगे। तो आगे हम और भी तस्वीर आपको स्कूल के दिखाते हैं, तब तक बने रहिए। तो हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर मौजूद हैं, तो इनसे हम फाइनल चीज़ें जानते हैं कि कब से स्कूल में एडमिशन स्टार्ट होने वाला है, न्यू सीजन में कब से स्टार्ट होने वाला है, साथ साथ और भी स्कूल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल की क्या कुछ फैसिलिटीज़ है, हर कुछ हम फाइनल सारे डायरेक्टर सर से जानते हैं। सर सबसे पहले तो नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अतुल्य भास्कर हुआ। जिला टॉप के तमाम दर्शकों को नमस्कार, जोहार। तो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, टीचर ने असेसमेंट के बारे में बताया, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, वो हर चीज़ें शिक्षकों ने यहाँ पे बताया। आप फाइनल बता दीजिए कि एडमिशन की कब से शुरुआत होनी है, कितने अलग अलग क्लासेस की कितने के लिए सीट अवेलेबल है, साथ साथ हॉस्टल्स की क्या कुछ फैसिलिटीज़ है? हमारे पास अभी आपको जूनियर सेक्शन में जो है हर क्लास में लगभग 10-12 सीट होगा, क्योंकि हमारा जो है इनटेक कैपेसिटी और क्लास का जो कैपेसिटी है वो 35 स्टूडेंट्स पर क्लास है। इससे ज़्यादा हम लोग बच्चा लेते नहीं हैं। और जहाँ तक हॉस्टल की बात रही तो 16 सीट्स जो है बॉयज़ के लिए अवेलेबल है और 13 सीट्स जो है गर्ल्स के लिए अवेलेबल है। और हमारा जो नया सेशन शुरू होगा वो 11 मार्च से शुरू होगा। 11 मार्च से हम लोग जो है अपना नया सेशन बिगिन करेंगे।
और इसके अलावा जो है स्कूल में आप लोगों ने देखा ही कि जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो तो आप लोगों ने देखा ही। तो क्लास 8 तक एडमिशन होगा। हमारे यहाँ क्लास 8 तक एडमिशन होगा। क्लास 8 तक के लिए नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक का अगर बच्चा 3.5 साल का है तो हमारे यहाँ आराम से एडमिशन करा सकता है। हॉस्टल की क्या कुछ फैसिलिटीज़ है, क्या कुछ डाइट दिए जाते हैं? अगर कोई हमारे कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनको आप बताएंगे कि क्या कुछ डाइट दिए जाते हैं बच्चों को? हॉस्टल में जो है 4 टाइम जो है खाने का हमारे यहाँ व्यवस्था है। 4 टाइम हम लोग खिलाते हैं। सुबह का नाश्ता रहता है, दोपहर का स्नैक्स रहता है, उसके बाद लंच रहता है, डिनर रहता है, और 7 डेज़ जो है हम लोग 7 दिन ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। इसके अलावा जो है वीक में 2 दिन नॉनवेज का भी प्रावधान रहता है, और बच्चों को दूध दिया जाता है। इसके अलावा और भी मतलब डाइट हमारा कुल मिलाकर के हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है और टेस्टी भी है। देखा जाता है कि बच्चे हॉस्टल में अपने माँ बाप को छोड़कर हॉस्टल में आके रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की वो जिम्मेदारी बन जाती होगी कि हम उसे वो इन्वायरमेंट दे सके कि बच्चे यहाँ पर इजीली रह सके। तो उसके लिए क्या कुछ कर? अब हमारा तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे टीचर्स। तो जो टीचर्स आप लोगों ने देखा कि जो पढ़ा रहे थे वो हॉस्टल में रहते हुए हैं, क्योंकि हमारे जी नहीं, वार्डन नहीं कह सकते उनको। एक्चुअली देखिए, हमारा मैं हॉस्टल तो चला नहीं रहा हूँ, बेसिकली मैं चला रहा हूँ एक बच्चा जो है अपने दूसरे घर से इस घर पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो टीचर्स हैं वो बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं, तो इससे बच्चों का मन भी लगा रहता है। और प्लस जो है, जैसे अभी मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाऊं। जैसे एक पेरेंट है जो कि हमारे पास है, असम से है, गुवाहाटी से है, ठीक है। वो आ नहीं पाए, बहुत अभी दुर्गा पूजा का जो वेकेशन हुआ उसमें नहीं आ पाए। तो हमारी एक टीचर हैं जो कि तमिलनाडु से है, उनके साथ वो बच्ची रही, और पूरा बहुत अच्छे से हम लोगों ने उनको मतलब घुमाया भी सब कुछ। तो एक एट होम वाला फील है। तो जो भी सारे टीचर भी रहते हैं तो सब जो है बच्चों के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि उनको घर की याद बहुत कम आती है। तो आपने देखा, ये स्कूल के डायरेक्टर थे, तो आपने देखा कि स्कूल में वो तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को वो फैसिलिटीज़ मिल पाए। आपने देखा कि टीचर से इंग्लिश में मीन्स फ्लुएंटली इंग्लिश की भी पढ़ाई यहाँ पर होती है। तो एक बार ज़रूर आप जीसस मैरी कॉन्वेंट स्कूल में पधारें और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला ज़रूर करवाएं। धन्यवाद।